Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Divedi and today we'll be continuing with, or rather we'll be starting with chapter 5, that is understanding marginalization. Okay, that what does marginalization mean? So before we start with chapter 5, I would like to tell you all that we have already completed the chapter judiciary. So if you haven't watched it, then do watch it. We've also completed the back exercises of judiciary. And let's start with marginalization. So our societies, they have marginalized society, that is the tribal population, etc. Who are, let's say, very less in number, and they do not have access to every facility the way the normal people, or I would not say normal people, but the privileged section have, right? So let's start. So there is this entire cartoon that we can see, Adivasis and marginalization. An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen, are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. They're like, oh, see an Adivasi float. Dadu, why do they always show Adivasis as only dancing? So this is very obvious, right? कि हम लोग भी अगर if you are not from the tribal community, तो अगर आप लोग को tribal communities के बारे में कोई कुछ भी पता है, तो हम क्या कहते हैं? Yeah, they are dancing, they are wearing those leaves, etc. So that's how we've prepared a notion within our mind about the tribal communities. So what did their grandfather say? That they do not know anything else about us. The lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that because they are not exposed, right? People didn't try to understand. They have just a simple notion. So what did he say? That when he was young, so in his village in Odisha, it was very beautiful village. They had everything they wanted, be it land or forest around us. They respected the land, फॉरेस्ट एंड दी रिवर. अगर हमने पढ़ा हो तो हमें पता होता है कि जो फॉरेस्ट होता है इट मीन्स एवरीथिंग टू दी आदिवासीज, राइट? Then suddenly we were told that the forest was not yours. Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, तो उन्हें मारा जाता था, उन्हें कोर्ट ले जाया जाता था, जहां पे उनके लॉयर, कोई भी लॉयर उनका केस नहीं लड़ना चाहता था. अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री में देखें तो यही हुआ था. Then the girl asked कि मतलब दादू आपने सर्वाइव कैसे किया? He also told कि बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा सीजनल वर्क या फिर ये सारे जो काम होते हैं उनको ढूंढने की तलाश में. Then the company walas came. They said that there was iron ore under our land. They wanted to mine it. उन्होंने जॉब भी प्रॉमिस करी, पैसा भी प्रॉमिस करा. If we sold our land to them, then some villagers were excited. Others said that ये उनकी जिंदगियों को खराब कर देगा. कुछ ने थंबप्रिंट दे दिए बिना ये रियलाइज करे कि वो अपनी जमीन बेच रहे हैं, बट बहुतों ने नहीं दिए, अपनी जमीन उन्हें नहीं दी. Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. ठीक है, कुछ ने बेचा कुछ ने नहीं बेचा, पर जिन्होंने नहीं बेचा उन्हें भी इवेंचुअली बेचना पड़ा क्योंकि उन्हें फोर्स कर दिया गया था कि आपको ये जमीन बेचनी ही पड़ेगी. They had the support of the authority. Our whole way of living vanished overnight. जो ट्राइबल कल्चर है वो एक ही रात में पूरा का पूरा जो था वो खत्म हो गया था. ओके जो मनी था वो इट हार्डली लास्टेड इन द सिटी. उनके पास कोई मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं था. दे वर क्राम्ड इनटू टाइनी रेंटेड रूम्स जहाँ पे उनकी जो केयर फ्री लाइफ थी जंगलों की उसे वो मिस करते थे. खुली हवा, खुले उनका पूरा एकदम इट वाज ह्यूज फॉरेस्ट, ऑल दोस थिंग्स. देन he said, I hated going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. ठीक है? They said that they spoke Santhali at home. Santhals are the tribe. It is one of the leading tribal communities. Like one of the, अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री उठाएं इंडिया की तो वहां पे सांथाल ट्राइब्स का भी काफी कंट्रीब्यूशन था. अगर हम ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली
ठीक है। उसके बाद for our 30 acres, we got little money from one contractor. I never saw most of my friends again. So this shows that how over one night the entire tribal community vanished. After a few years, your father got a job in Delhi, and we all moved here. Those were very difficult times. That is why both of you did not go to school for several years. I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I'll make a movie on this story, our story, the Adivasi story. So this is how we can see a grandfather telling her granddaughters that how actually Adivasi lifestyle or the tribal lifestyle was. But nowadays we only know a little because only little is left. Else it was a vast scenario, and it had a wider picture rather than just this tiny small one that they always done. So now let's see that who are आदिवासी. अगर हम आदिवासी टर्म देखें तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि आदिवासी आर दी ट्राइबल पीपल, दे आल्सो रेफर्ड एज आदिवासी. बट आदिवासी का जो लिटरल मीनिंग है वो है ओरिजिनल इनहैबिटेंट. ठीक है, वो वहां के असली रहने वाले जो है. ठीक है. Our communities who lived and often continue to live in close associations with forest, ये वो communities हैं जो आज भी जंगलों के बहुत close association में रहती हैं. Around 8% of India's population is आदिवासी. Sorry, around 8% जो population है वो हमारी tribal population है. Okay. And many of India's most important mining and industrial centers are located in आदिवासी areas. जैसे अगर हम जमशेदपुर की बात करें, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, अमंग अदर्स, तो ये मेजर हमारे ये छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड, तो ये मेजर आदिवासी एरियाज हैं जहाँ पे अब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लग चुके हैं. आदिवासीज आर नॉट होमोजेनियस पॉपुलेशन. ठीक है. There are 500 different आदिवासी ग्रुप्स. आपको मतलब बहुत तरह तरह के आदिवासी ग्रुप हर स्टेट में मिल जाएंगे. मध्य प्रदेश में अगर हम 2011 के सेंसस को काउंट करें तो मध्य प्रदेश इज द लीडिंग, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है. ठीक है. अब आदिवासी में पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यूपी में भी कहीं कहीं आपको ये ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. असम. अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में. असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो लीडिंग है ट्राइबल पॉपुलेशन में. ओडिशा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप. ठीक है. ओडिशा 60 से भी ज्यादा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स का है वहां पे. आदिवासी सोसाइटीज आर ऑलमोस्ट also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. ठीक है. जैसे होता है ना hierarchy की एक के बाद this person is gone, now he or she will be taking the authority and the entire administration. तो ऐसा कोई भी hierarchy वहां exist इतनी नहीं करती. तो क्योंकि हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती इसीलिए वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं बाकी कम्युनिटीज से. ठीक है. और organized around principles of जाति, वर्ण, कास्ट एंड दोज रूल्ड बाय किंग्स. तो यहाँ पे कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती कि यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम है या कुछ ऐसा सिस्टम है. इसीलिए जो हमारा कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है उससे काफी अलग हो जाती है जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो. आदिवासी प्रैक्टिस करते हैं रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन. उसमें बहुत से लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी. और अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाएं तो वहां पे आपको बुद्धिज्म फॉलो करते हुए भी बहुत से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे. बट इनकी जो पूजा पाठ है ये ऑफन क्या होता है, या तो ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने गांव की, और नेचुरल स्पिरिट्स की. ठीक है. The last associated with and residing in various sites and landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc. इन सब की ये लोग पूजा करते हैं.
The village spirits are often worshipped at specific sacred groups within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. उसके बाद और जो आदिवासीज होते हैं, they have always influenced the different surrounding religions. ठीक है, जैसे कि शाक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. ठीक है, इनका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपको आदिवासी रिलीजन और ट्रेडिशंस में देखने को मिल जाए. Simultaneously, आदिवासी religions themselves have influenced dominant religion of empires around them. ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो जगन्नाथ कल्ट है उड़ीसा का, एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम, ये सब आदिवासी कल्चर से इंस्पायर्ड है, आदिवासी रिलीजन से इंस्पायर्ड है. ड्यूरिंग द 19th century, substantial number of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as very important religion in modern Adivasi history. ठीक है, और मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में क्या सुनने को हमें मिल रहा है कि बहुत से जो आदिवासीज हैं they've converted into Christianity. वैसे ही आदिवासीज की अपनी लैंग्वेज भी होती है, most of them radically different from and possibly as old as संस्कृत. तो संस्कृत जितनी पुरानी भी हो सकती है और एक दूसरे से मोस्टली डिफरेंट भी होती है. ठीक है, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages. अब जैसे बंगाली एक मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज है जिसपे काफी हद तक इन्फ्लुएंस रहा है आदिवासी लैंग्वेज का. संथाली जो लैंग्वेज है, इट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स है and has a significant body of publications including magazines and internet on the internet or in e-zines. तो जो सांथाल ट्राइब्स हैं वो अपने ई प्रिंट्स भी अब छोड़े. सो अगर हमें ये लगता है ना कि ट्राइब्स आर ओनली restricted to dancing and wearing clothes जैसा इस फोटो में दिया है, तो ऐसा नहीं है. They are, अगर आप थोड़ी और रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा ना, they are leading in every field possible. And now Santhal tribes have also, started leaving their e-prints, e-footprints, I would rather say. अब देखिए, अब आते हैं मेन वही जो हम कह रहे थे कि आदिवासी एंड स्टेरियोटाइपिंग. हमें क्या लगता है कि आदिवासियों के ऐसे पत्ते पहन के they would be dancing. ऐसा होता है क्योंकि वो उनका कल्चर है, बट इट्स नॉट दैट दे आर ऑलवेज डांसिंग एंड हंटिंग एंड ईटिंग. पुराने टाइम में ऐसा होता था, बट अब धीरे धीरे जिस तरह से चीजें बदल रही हैं उस तरह से आदिवासी कल्चर भी इवॉल्व हो रहा है. राइट, इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटी इन particular ways. Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are very invariably portrayed in very stereotypical ways. और ये तो बॉलीवुड की खैर प्रॉब्लम भी है. वी टॉक अबाउट बॉलीवुड कि बॉलीवुड में हर चीज को एक स्टेरियोटिपिकल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है. अगर किसी मुस्लिम कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है तो the man has to be always wearing some kajal, एक छोटी सी ताबीज और पठानी कुर्ता, और whenever he'll be entering there will be some Arabic music and he'll be saying अस्सलाम वालेकुम. वैसे अगर आप एक गोवन कैरेक्टर को देखें तो किस तरह से स्टेरियोटाइप कर दिया गया that they'll be speaking कि हम तो तुमको नहीं जानता मैन, and they'll be wearing all floral clothes. तो ये हमारी मूवीज की भी गलती है. that is what is being fed into our mind since very beginning, right? So if we in India we usually showcase आदिवासी community in particular ways, हमें stereotypical way में भी, अब जैसे कि उनके colorful costumes, headgear and through their dancing. Besides this, we seem to know very little about the realities of their life. अच्छा, अगर आप अभी किसी random बच्चे को उठा के और पूछो कि ट्राइबल्स के बारे में क्या जानते हो, वैसे वो हंट करते हैं, they eat and they'll do that झिंगालाला dance, because that's all we know as kids, right? But अगर आप अभी पूछो कि सांथाल ट्राइब्स के बारे में क्या जानते हो, क्या उन्हें पता है कि जो इंडिया का स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसमें ट्राइबल मूवमेंट भी थे बहुत सारे. आज बहुत से ऐसे लीडिंग ट्राइबल लोग हैं जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के दे आर होल्डिंग वेरी गुड ऑफिसेज इन इंडियन गवर्नमेंट. तो ये मेजोरिटी लोगों को आज भी पता नहीं होगा. दिस इज very sad, but it is not our fault as well, because that is what we are being fed for years, right? This often wrongly leads to people believing them as exotic, primitive and backward. ठीक है कि पुरानी चीजों को ही फॉलो करते हैं, बहुत पिछड़ी सोच के होते हैं, they are all very exotic. Often Adivasis are
blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. But if we go and see the truth, first of all, it depends on them, right? जिस तरह से हमारा एक घर है, we have proper facilities, जो फॉरेस्ट है ना, वो आदिवासी लोगों का घर है. तो ऐसा नहीं है कि वो बैकवर्ड है. If they want advancement, if any tribal person wants advancement, they'll surely be doing it. अब ऐसा थोड़ी है कि नॉर्थ ईस्ट जाके सारे घर आपको ऐसे ही मिलेंगे, झोपड़ियां ही होंगी वहां पे, बहुत एडवांस घर है. और अगर आप जाके देखें तो वहां पे जो रह रहे हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग. हाँ, वो अपने फेस्टिवल्स को अपने ऑथेंटिक मेथड से सेलिब्रेट करते हैं, and which is good, right? Everybody does that, but ऐसा नहीं है कि they are against any sort of advancement in their community or in their lives. तो एडवांसमेंट की बात होगी तो डेवलपमेंट की भी बात होगी. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. आदिवासी और डेवलपमेंट का कितना रिलेशन है. तो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि फॉरेस्ट were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. अब जैसे मेटल ओर्स हो गए, हमारा आयरन ओर है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्स, लाख, हनी. आपने देखा होगा ना, if your mothers they must be wearing those लाख की चूड़ियां आती हैं, ठीक है. तो हमें नहीं पता होता है कि प्रोड्यूस कैसे होता है, बट इट इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. वैसे ही वैक्स है, बीज वैक्स है जो बहुत जगह यूज होता है, हनी है, उसके साथ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, एनिमल देमसेल्व्स जैसे कि एलिफेंट्स हैं. उसके बाद हमारे द मेन स्टे ऑफ इंपीरियल आर्मीज. तो ये जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल they are coming from the nature, right? All came from the forest. In addition to continuation of life dependent heavily on forests that help recharge many of India's rivers, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water, right? Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasi had a deep knowledge of, access to, as well as control over the most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century. और अभी भी जैसे अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहां के जो लोकल पहाड़ी रहने वाले होंगे उन्हें शॉर्टकट पता होंगे, 5 किलोमीटर घूम के जा रहे होंगे, they'll start walking later than you and they'll reach faster. A, because they're habitual of it, they'll be walking fast. B, because they know shortcuts. वैसे ही अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपनी सिटी में तो आपको पता होगा ना कि यहाँ पे ये चीज बेस्ट मिलती है, ये रास्ता शॉर्टकट है. वैसे ही ट्राइबल्स का घर उनका जंगल है, उनका फॉरेस्ट है, तो उन्हें पता है कि फॉरेस्ट से किस तरह से चीजें लेनी है. दे हैड डीप नॉलेज अबाउट ऑल द मेडिसिनल हर्ब्स अवेलेबल. कहाँ पे क्या हंटिंग है, कहाँ पे किस चीज से हमें बच के रहना है, कौन सा एरिया डेंजरस है. They knew everything, but slowly in the British era, they started losing their control over their forests. This meant that they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily dependent on Adivasis for the crucial access to forest resources. अब आदिवासी को बेटर पता होगा ना, क्योंकि वो वहां रह रहे हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलेगा हमें ज्यादा बेटर, यहाँ पे ये चीज ज्यादा अच्छी है. तो ये सारी चीजें जो आदिवासी को पता थी, वो उसका जो लीडिंग वहां पे एम्पर वगैरह थे, दे यूज्ड टू बेनिफिट फ्रॉम. दिस इज रैडिकली कॉन्ट्ररी टू आवर image of Adivasi today as somewhat marginal and powerless community. In the pre-colonial world, there were traditionally range hunters, gatherers, and nomads, and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे हमने काफी पढ़ा है, और जो लीडिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंडिया में है वो कौन सा है? इट इज झूमिंग एग्रीकल्चर. तो देखिए ये मोस्टली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे सरवाइव करते थे. ऑल्दो these remains for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by state and private industry to migrate to lives as workers in plantations, at construction sites, in industries, and as domestic workers. कि वो अपने जो घर हैं उन्हें खाली कर दे और माइग्रेट कर दे. क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं
उन्हें क्या चाहिए, उन्हें टिम्बर चाहिए, उन्हें खाली लैंड चाहिए ताकि वो वहां पे रेजिडेंशियल एरियाज, मॉल्स ये सब बना सके, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। एक तो इकोनॉमिक, एक तो environmental hazards इतने ज्यादा है, you will be deforested, you will be promoting deforestation, उसके बाद आप किसी का घर छीन रहे हैं उनसे, and then you expect कि भाई वो जाके and they work as plantation workers in construction sites and industries as domestic workers, which is not good, और उसके consequences human race पे भी कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. अगर आपको पता हो, there was this Forest Act passed in 2005. If you want, you can read on it. It was very, very, let's say one of the landmark decisions to protect the Adivasi communities and their land. Now, this is a photo of Niyamgiri Hill, located in Kalahandi district of Odisha. This area is inhabited by Dongaria Pon, एक आदिवासी कम्युनिटी है। नियामगिरी इज सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी, मतलब सेक्रेड होता है ना कि बहुत प्योर और रिलेटेड टू रिलीजन, पूजा पाठ वाली। A major aluminium company is planning to set up a mine and a refinery here, which will displace this Adivasi community. They have strongly resisted this proposed development, and they joined in, and environmentalists ने भी इन्हें ज्वाइन किया। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, बट आप सोचिए कि ये पूरी जमीन जो कि ट्राइबल्स की थी, अब उन्हें एक एल्यूमिनियम जो हमारी कंपनी है वो ले लेगी फॉर द सेक ऑफ रिफाइनरीज एंड एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। Now a lot of people may say that do you not want development? Everybody wants development, but not on the condition कि उनके ही देश के लोग अपनी ही जमीन से अलग हो रहे हो, उनको आप रीलोकेट कर रहे हैं, आप उनसे उनका घर छीन रहे हैं। Development is necessary, but not at the cost which is so big, right? अब देखिए उसके बाद, forest land have been cleared for timber to get land for agriculture and industry. तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, दिस इज व्हाट दे डू, लकड़ियों के लिए, टिम्बर के लिए वो पूरा पूरा ऐसे एक एक जंगल साफ कर देती हैं। Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. These are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often colluded to take over tribal land. Much of the time, the land is taken away forcefully and procedures are not followed. मतलब डरा धमका के, if you will see tribal people, they are very simple people. They are very innocent, right? तो उन्हें डरा धमका के, and what do people do? They take their land. According to official figures, 50% से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं माइन या फिर माइनिंग प्रोजेक्ट से, और जो डिस्प्लेस हो रहे होते हैं वो 50% से ज्यादा लोग ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। Other recent survey reports by organization working among आदिवासी shows कि जो 79% लोग होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। वो लोग कौन होते हैं? ट्राइबल होते हैं। उनके जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पानी के अंदर चले गए हैं। फॉर हंड्रेड्स ऑफ डैम दैट हैव बीन बिल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। ठीक है, आपको पता है ना कि नॉर्थ ईस्ट का काफी इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव जोन इफ यू टॉक अबाउट राइट। वहां पे मोस्टली अभी जैसे मणिपुर में हुआ, तो वो जो एरियाज होते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा मिलिट्री तैनात रहती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इंडिया में 101 नेशनल पार्क हैं, जिसमें 40,564 स्क्वायर मीटर एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज covering 1,19,776 square kilometers. These are areas where tribal originally lived but were evicted from. Because कहाँ बनते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर ये जो नेशनल पार्क होते हैं? जंगलों में। जंगलों में कौन रहता था? ट्राइबल्स, बट नाउ दे आर evicted from here, कि उनको निकाल दिया गया है। When they continue to stay in their forest, they are termed as encroachers. अपने ही घर में they are termed as encroachers. अपनी जमीन खोने के बाद और अपने फॉरेस्ट
से एक्सेस खोने के बाद ट्राइबल्स का जो मेन सोर्स होता है जीने का और खाने का वो भी चला जाता है. दे हैव लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स. मेनी आदिवासीज दे हैव माइग्रेटेड टू सिटीज काम की तलाश में. वो अब बहुत ही कम वेजेस पे लोकल इंडस्ट्रीज में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. दस दे गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी. और इसीलिए और डेप्रीवेशन. एक तो वो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है प्लस गरीब, क्योंकि उन्हें अपने घर से निकाल दिया. अब ना उन्हें उतनी ज्यादा बेटर नौकरियां मिल रही है, बहुत ही कम पैसों पे उन्हें नौकरियां मिल रही है. एंड नाउ अब हम में से कोई एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान उठ के बोल देगा कि ट्राइबल कम्युनिटीज तो बहुत गरीब होती है, ये क्या ही कंट्रीब्यूशन कर रही है देश में. बट ये नहीं देखेंगे कि अगर वो ऐसे हैं तो उसका रीजन क्या है. राइट. 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. गरीबी रेखा के नीचे. एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर. दिस मीन्स कि वो और भी एरियाज में डिप्राइव है, जैसे कि बहुत से चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे मैल न्यूट्रिशन है. लिटरेसी रेट ट्राइबल्स में बहुत कम है. राइट. तो अगली बार अगर आप एसटी कम्युनिटी को मिल रहे हैं रिजर्वेशन पे, उंगलियां उठाएं, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि अगर उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है शेड्यूल ट्राइब को तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट. दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन पास्ट एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू अ लॉट. तो अगर लीडिंग यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट रूल्स के अंदर एवरी यूनिवर्सिटी is giving them the reservation, then it is justified enough. And we being the privileged section of the society, we are nobody to question them. ठीक है. जब आदिवासी को उनके लैंड से डिस्प्लेस किया गया तो दे लूज मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है. आपको अचानक से अपने घर से निकाल दिया जाए और बोला जाए कि जाओ कहीं रिलोकेट हो जाओ, तो आप सिर्फ अपना घर नहीं खोएंगे, यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. आप अपना ट्रेडिशन, अपना कस्टम, अपने जीने का तरीका, ये सारी चीजें खो देते हैं. दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेस, दे टुक द क्रेमेशन ग्राउंड, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड. हाउ विल वी सर्वाइव? आपने तो उनसे पूरी उनकी लाइफ ही ले ली ना. ये किसने कहा? ये गोविंदा मरण जी ने कहा है, जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया था रिफाइनरी प्रोजेक्ट के चलते ओडिशा में. As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life. Destruction in one sphere naturally impacts the other. Often this process is dispossession and displacement can be painful and violent. हमने देखा ना ऊपर की किस तरह से उनसे A to Z सब कुछ छीन लिया गया. So obviously displacement can be painful and violent. Okay. Now let's come to minorities and marginalization. तो यूनिट 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था. अगेन इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो देन डू वॉच इट. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेफगार्ड. होता है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा फंडामेंटल राइट है ना, राइट है कि हम कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हमें मिले हैं. सो व्हाट डू यू थिंक these minority groups have been provided these safeguards? अब देखिए टर्म माइनॉरिटी हम कॉमनली यूज करते हैं उन कम्युनिटीज के लिए जो कि नंबर में काफी कम हो बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में. ठीक है. हाउएवर ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो नंबर के बियॉन्ड भी जाता है. सिर्फ नंबर से आप किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी नहीं बोल सकते. इट encompasses issues of power, access to the resources and our social and cultural dimensions. ठीक है कि भाई कितना आपको पावर है आपके हाथ में, उसके बाद आप कितना रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके सोशल और जो कल्चरल dimensions हैं वो क्या है. राइट. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. अब देखिए in much cases जो size है it can be disadvantaged and it can lead to marginalization of the relatively smaller communities. जैसे कि 10 सेफगार्ड आर नीडेड कि वो प्रोटेक्ट कर सके माइनॉरिटी कम्युनिटीज को. किसके? अगर कल्चरली उन्हें डोमिनेट करा जा रहा है मेजोरिटी के थ्रू, इसके अगेंस्ट
माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करा जा सके। उसके बाद उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव और डिसएडवांटेज से प्रोटेक्ट करा जा सके जो वो फेस कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस जो दी गई है, इसमें कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट सोसाइटी, it can feel insecure about their lives, assets and well-being. This sense of insecurity may get accentuated if the relations between minority and majority communities are fraught. जैसा कि अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इन सेफगार्ड्स को, क्योंकि उसमें इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जुडिशरी जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉज को इन्फोर्स करने में, फंडामेंटल राइट्स को भी हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। और हर सिटीजन जो है इंडिया का वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को अगर वो ये बिलीव करता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा जा रहा है। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 32। हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जुडिशियल रिव्यू के क्वेश्चन आंसर्स में, कि किस तरह से जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के किस तरह से जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं। नाउ let us understand marginalization in context of the Muslim community. मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 14.2% इंडिया की पॉपुलेशन मुस्लिम है, क्योंकि कंपैरिजन में बाकी कम्युनिटीज के ओवर द इयर्स दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेटा है नीचे दी गई तीनों टेबल में, ये डिफरेंट सोर्सेज से डिराइव हुआ है। जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो सिचुएशन है उसे इंडिकेट करता है बाकी एमिनिटीज से रिलेटेड, ठीक है, लिटरेसी से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से, बेसिक एमिनिटीज से, राइट। तो हिंदूज के पास 65.4%, 65.4 इज दिस इन परसेंटेज? ओके, एनीवेज, तो उसके बाद 63.8 के पास पक्का हाउस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टैप वाटर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो डिप्राइव्ड है वो मुस्लिम कम्युनिटी ही है, अगर हम हिंदू, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी से कंपेयर करें तो। नाउ लिटरेसी रेट में 74, जिसमें हिंदू 63 है, मुस्लिम 57 है, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है 74, 67, Buddhist 61. Oh, Jains are leading it. It's 86, not Christians. Jains are leading it in fact. ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स परसेंटेज 13.5, IAS 3, IPS 4, IFS 1.8। उसके बाद PSU में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 3.3, स्टेट PSU में 10.8, बैंक्स और RBI में 2.2, not bad. Recognizing that Muslims of India were lagging behind in terms of various development indicators, but क्योंकि ये 2011 के सेंसस है और कोविड के चलते 2021 में सेंसस नहीं हो पाए थे, इसीलिए हम इन डेटा पे इतना रिलाई नहीं कर सकते। या they were lacking back in 2011, but currently I don't think they are lacking this much because काफी डेवलपमेंट हो चुका है। The government set up high-level committee in 2005, जिसको जस्टिस रजिंदार सचार ने क्या किया था, इसे ये कमिटी उन्होंने चेयर करी थी। इस कमिटी ने एग्जामिन किया था सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में, और इस कम्युनिटी ने ये डिस्कस भी किया था डिटेल में कि मार्जिनलाइजेशन क्या है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का। इसने सजेस्ट किया था range of social, economic and educational indicators. The situation of Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled castes and scheduled tribes. For example, according to the report of the average years of schooling for Muslim children between 17 to 16 is much lower than other social religious communities.
अब उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनाइजेशन एक्सपीरियंस जो है मुस्लिम कम्युनिटीज में, वो भी और बहुत से डिमेंशंस में, जैसे कि बाकी माइनॉरिटीज की तरह जो मुस्लिम कस्टम्स और प्रैक्टिसेस है वो कभी कभी बहुत अलग है मेन स्ट्रीम से। जैसे कि सब, नॉट ऑल मुस्लिम्स में वेयर बुरखा, मतलब सारे मुस्लिम्स नहीं बट मेजोरिटी मुस्लिम्स को आई हैव सीन वेयरिंग बुरखा। They sport a long beard, wear a fez, and this become ways to identify all Muslims. Because of this, they tend to be identified differently, and some people think that they are not like the rest of us. Often, this becomes an excuse कि उनको हम unfairly treat करें, उनके साथ discriminate करें। ये जो सोशल मार्जिनाइजेशन है मुस्लिम का, कुछ इंस्टांसेस में इट हैज लेड टू कि वो माइग्रेट कर जाए और जगहों पे, ऑफन लीडिंग टू द ghettoization of the community. Sometimes the prejudice leads to hatred and violence. तो जो अबव सेक्शन है इस चैप्टर में, उसमें पढ़ा कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है द लिंक बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन। इससे पहले हमने आदिवासीज के बारे में, जो एक्सपीरियंस है इन सारे ग्रुप्स का, ठीक है, ये क्या पॉइंट करता है, जो मार्जिनाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड्स की जरूरत है जो रिड्रेस कर सके इस सिचुएशन को। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. तो कंक्लूजन पे आते हैं जल्दी से हमारे इस चैप्टर के। आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से वी मस्ट प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। हमें किसी को भी ऐसे डोमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द लीडिंग कम्युनिटी एंड इवन इफ यू आर द पार्ट ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, you must respect India's constitution and the people of majority community as well. कभी कभी बहुत से देशों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा that the minority is the reason behind a lot of chaos happening in the country, right? So both of the communities should take care of the country, its rules and its people as citizens and not as various communities. तो जल्दी से कंक्लूजन पे आते हैं। इस चैप्टर में हमने समझने की कोशिश करी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को। हमने ये भी देखा कि क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को स्टेरियोटाइप से हट के। डिफरेंट रीजंस होते हैं कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज करने के। ईच एक्सपीरियंसेस मार्जिनाइजेशन इन डिफरेंट वेज। हमने ये भी देखा है कि मार्जिनाइजेशन किस तरह से डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस और पावरलेसनेस से रिलेटेड है। आदिवासी के केस में इट इज वेरी वेरी ट्रू। इन इंडिया बहुत सी मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज है जैसे कि दलित है, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनके मार्जिनाइजेशन ने रिजल्ट क्या है, हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, व्हिच इज ट्रू, राइट। आदिवासी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन, येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल बदल सकती है अगर no one is marginalized all the time is in exactly the same way। अगर हम पहले जाके देखें तो दो एग्जांपल्स थे मार्जिनाइजेशन के जो हमने पढ़े, राइट। तो each of these groups have a long history of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. In the next chapter हम पढ़ेंगे किस तरह से different groups हैं who have confronted marginalization। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस चैप्टर को आपको जल्दी से एक क्विक रिकैप दूं, तो we did study about the आदिवासीज एक्सेट्रा, बट इसमें जो मेन हमें सीखने को मिला ना, अगर इसका एक हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू निकालें तो क्या था कि even if somebody is belonging from the marginalized community, we have to be equal, we have to treat them equal। उनको वही equal opportunities देनी चाहिए हमें so that they can do equally good। Okay, and with this we complete the chapter understanding marginalization। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी and soon we'll be coming with the back exercises of this chapter, so stay connected to our channel and thank you for watching।